کراچی بلدیہ ٹاؤن میں مسیح آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. تھوڑا سا بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے, یہ بہت اہم بات ہے. میں نے پچھلے ٹاپک کو زیادہ لمبا کھینچ دیا, یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے. کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں مسیحی آبادی اور مسلمانوں کو لڑانے کی ایک سازش کی گئی, جس میں مسلمانوں کے ایڈریس میں کچھ لفافوں کے اندر مقدس اوراق کو جلا کر بھجوایا گیا. اس سے عوام میں اشتعال پیدا ہوا, ہجوم اکٹھا ہو گیا. ہمارے علماء اور اداروں کے بروقت ایکشن سے عوام مطمئن بھی ہوئی اور بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا. مفتی زبیر صاحب اور دیگر مفتیان کرام نے عوام کو اس موقع پر ٹھنڈا کیا اور حکومتی ذمہ داروں نے بھی غفلت نہیں دکھائی. اگر اسی طرح علماء اور حکومت مل کر خود سے ان واقعات کو سیریس لیں تو یہ جذباتیت اور حادثات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. بہترین بات کی ہے, مسیحی برادری میں, مسیحی علاقوں میں کسی کمبخت کی شرارت کی ہے, لفافوں میں قرآن کے جلے ہوئے اوراق بھیجے. اس کا اچھا یہ نہیں پتا کہ مسلم نے کیا یا غیر مسلم نے کی ہے, یہ نہیں پتا, وہی سازشی نے کی ہے. وہاں پر یہ تھا کہ جب یہ لفافے کھلیں گے تو ہم یہاں چھاپا ماریں گے, دیکھو قرآن کے اوراق انہوں نے جلائے ہیں. تو الحمدللہ بروقت اس سازش کو پکڑ لیا گیا, اور یہ پکڑا بھی علماء نے اور گورنمنٹ نے مل کے یہ کام کیا ہے. تو اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ فوراً مشتعل نہ ہو جایا کرو. پاکستان میں بسنے والے ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسیحی ہوں, کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. کل جامعۃ الرشید میں جلسہ ہوا ہے الحمدللہ. اس جلسے میں شیعہ لوگوں کو بھی بلایا, علماء کو, اہل حدیث کو بلایا, بریلویوں کو بلایا, سکھوں کو بلایا, ہندوؤں کو بلایا, ہندو کے پنڈت آئے ہوئے تھے اور مسیحی برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے, سب آئے ہوئے تھے. جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے فضائل صحابہ بیان کیے. 2 شیعہ اسکالر, نام یاد ہے میں بھول گیا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہم صحابہ کی گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے. ان میں ایک شیعہ اسکالر وہ تھے کہ کچھ دنوں پہلے ایک شیعہ نے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کی تھی, تو اسی شیعہ اسکالر نے جا کے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے, جن کو جامعۃ الرشید نے اپنے اسٹیج پہ کل بلایا. کل میں بھی تھا اس میں, کل عصر کے بعد جلسہ ہوا ہے جامعۃ الرشید میں, پروگرام ہوا ہے. تو ہر فرقے میں ایسے معتدل لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی گستاخیوں کو پسند نہیں کرتے. میں تو شیعہ عالم سے ملا, میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے جلسے سے ایک بندہ خطاب کر رہا ہے, ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہے نا. اگر کوئی منہ سے اچھی بات کر رہا ہے تو میں اس کو بولوں تقیہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو یار یہ کون سا طریقہ ہے, اس سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے تو دل جیت لیا ہمارا. دوسرے اسکالر نے بھی یہی بات کی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ سارے شیعہ ایک جیسے, دیکھو شیعہ مسلک کو میں درست نہیں کہہ رہا, ہمارا اختلاف ہے شیعوں سے, جیسے اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے, بریلویوں سے بھی اختلاف ہے. اختلاف رکھنا یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہے, ہر شخص کی ایک رائے ہوتی ہے, لیکن یہ اختلاف آج سے نہیں ہے, صدیوں سے ہے. تو صدیوں سے جیسے تمیز سے زندگی گزار لی, تو ابھی بھی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. اختلاف ہندوؤں سے بھی ہے یا نہیں ہمارا, لیکن کیا مطلب جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے. تو اتنا اچھا لگا, وہ ہندوؤں نے بھی تقریر کی, ہندو پنڈت نے آ کے کہا کہ ہم تمام ہندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی مسلمان کرتے ہیں. ایک پازیٹو میسج گیا نا, کیا خیال ہے بھائی. سکھ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, اور ہمارے جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی یہ بات کہی. ان غیر مسلموں کو بتایا کہ اگر آپ پر کوئی مسئلہ آیا تو ہم اپنے مسئلے کو چھوڑ کر سب سے پہلے کس کا مسئلہ حل کریں گے, آپ کا مسئلہ. تو ملک میں یہ محبت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. باقی دین اور مذاہب اور مسلکوں میں اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی رہے گا. وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کس حد تک صحیح ہے. وہ ڈیبیٹ کی حد تک صحیح ہے, بحث کی حد تک صحیح ہے. تو زندہ قومیں ڈیبیٹ بھی کرتی ہیں, لیکن یہ جو چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, اڑا دو, پھوڑ دو, جلا دو, ٹھش پیش, اور یہ عاشق رسول بنتے ہیں. پھر وہی ہوا جو عیسائیوں کی بستی کو کچھ وقت پہلے جلا دیا تھا, اب یہاں بھی جلانے کی سازش تھی. تو نبی کے عشق میں ہمیں اعتدال کراس کرنے کی اجازت, لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے ان تمام مذہبی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ طنز کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے, کسی بھی مذہب کے ہوں. یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے. سوشل میڈیا پہ جو بھی ایگریسونیس دکھا رہا ہے, جذباتی بن رہا ہے, اڑا دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, آپ سب نے اس کو, کچھ گالیاں میں آپ کو الگ میں آ کے بتاؤں گا, مسجد میں بتانے کی نہیں ہے. وہ گالیاں کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں, وہ تمام گالیاں, اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لکھیں کہ اس کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ بھی, اور جتنی گالیاں مستقبل میں ایجاد ہوں گی. ملا نصیر الدین بازار میں جا رہے تھے تو غلطی سے بڑھیا کے ساتھ ٹکر ہو گئی ان کی. اب غلطی ہو گئی, انہوں نے سوری کی, لیکن بڑھیا نے ایک موٹی سی گالی نکالی ملا نصیر الدین کو. ملا صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب میں گالی نکال دی, غلط کیا لیکن نکال دی گالی. بڑھیا کو پھر غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی, ملا صاحب نے بھی ایک نکال دی. بڑھیا نے کہا تو بھی گالی دے رہا, اب گالیاں میں مقابلہ کر, اب میں تجھے گالیاں دیتی ہوں, تو نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ملا صاحب بڑے آرام سے, ملا صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا, جتنی گالیاں تو دے سکتی ہے نا دے دے, جتنی دے سکتی ہے.
बुढ़िया ने गाली शुरू की, ये तू ऐसा है, अब क्या गालियां दूं मैं यहाँ बैठ के, तू यूं है, फलानी गाली, पंजाबी गालियां, फारसी गालियां, इंग्लिश गालियां, पश्तो गालियां, उर्दू गालियां, जो उस जमाने में जो जमाने राइट। मुल्ला साहब गुस्सा नहीं हो रहे, आराम से बैठे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ला साहब के पास सॉलिड जवाब था इन गालियों का। जब सारी गालियां खत्म हो गई ना, तो मुल्ला साहब ने उस बुढ़िया से कहा, सोच ले, कोई रह ना गई हो, क्योंकि मुकाबला हार जाएगी वरना तू, क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा गालियां देने वाला हूं। वो सोच सोच के गाली लेकर आती, ये वाली गाली भी। जब बिल्कुल थक गई, उसने कहा गालियां खत्म हो गई। मुल्ला साहब ने कहा, तूने जितनी गालियां दी हैं ये भी एक शॉपर में, सही है, इस कायनात में माजी में जितनी गालियां गुजर चुकी हैं वो भी उसी शॉपर में, और जो क़यामत तक गालियां पैदा होंगी जिस जिस जबान में वो भी उसी शॉपर में, और वो तुझे। बुढ़िया को गुस्सा आया, उसने बोला जलील, मैंने कहा शॉपर में। उसने कहा कमीने, शॉपर में। उसने कहा बेगैरत, यानी घूम के कहां जा रही है। तो ये जो फिरकावारियत इस तरह से शिद्दत पसंदी मुल्क में फैला रहे हैं, ये सारा सिर्फ पाकिस्तान में मसला है। यूट्यूब पे बैठो आदमी मुर्तद, लोग मुर्तद हो रहे हैं यार, मजहबी स्कॉलरों की देखो यार, टांगे खींचने में लगे हुए हर वक्त। तो इसलिए कोई भी शिद्दत पसंदी फैलाता है, आपने शॉपर तैयार रखे और ये शॉपर एक बना दें, इसमें वो तमाम गालियां जो थी और हैं और क़यामत तक पैदा होंगी, एक शॉपर कि ये तुझे मुबारक हो। तो इसलिए ये जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हो गया मसीही बरादरी के साथ। मैंने पाकिस्तान में कोई मसीही, कोई हिंदू, कोई सिख ऐसा नहीं देखा जो स्टेट के खिलाफ हो या मजहब के, इस्लाम के खिलाफ। किसी और मुल्क में होंगे भाई, हमें नहीं, हमें अपने मुल्क का पता है। लेकिन कुछ शिद्दत पसंद लोग चाहते हैं कि लड़ाइयां हो, और तौहीन ये बेहतरीन लफ्ज निकला हुआ है, जिस पे चाहो इल्जाम लगा दो। इससे बच के चलना बहुत हो गया मेरे भाई, बस करो यार। चीज से भाई ये सवाल वाजे पूछा करो। अब इन्होंने, मेरा नाम मोहम्मद आफाक अहमद, मैं खुसूसी आपसे कहाँ है आफाक अहमद, कहाँ है? ठीक है, बैठ जाए, भी बुलाता हूँ आपको। आ जाओ इधर ही आ जाओ। वो मुझे बोलता है अक्सर, भाई लड़कियों की बातें करता है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बहुत गंदे गंदे अल्फाज लिखे हुए पागल बच्चे ने, टाइट। मैं अपने, और भाई खैरियत से हो? दोबारा आ जाओ ना, तवज्जो नहीं थी मेरी। बाजोड़ स्टेशन, मालाकंड, बाजोड़ वाले लोग बाजवड़ बोलते हैं, बाजवड़ ना पुश्तो, और आप मालाकंड स्टेशन। चलो अल्लाह खुश रखे आपको। आपका चेहरे से लग रहा है कराची स्टेशन नहीं है, चेहरा बता देता है कि ये स्टेशन, ये केपीके का और वजीरिस्तान का पानी है। थोड़े दिन कराची में रहोगे ना, जब वापस जाओगे तो लोग गांव में घुसने नहीं देंगे, बोलेंगे कोई गैर आ गया हमारे इलाके में। मैं अपने पैसों से अपने शौहर को उम्रे पे ले जाना चाहती हूँ, हमारे घर वाले सुने, अल्लाह करे। मेरी सास जो कि ज़ईफुल उम्री 76 साल की हैं, हज कर चुकी हैं, वो भी साथ जाना चाहती हैं। मैं वहां इनकी जिम्मेदारी उठाने से कासिर हूं, क्या मैं इनको मना कर सकती हूँ? दूसरी सूरत में उम्रे के लिए नहीं जा सकूंगी। हाँ, 76 साल ज़ईफुल उम्र है, देखो मना कर तो सकती हो आप, लेकिन ना करो तो ज्यादा अच्छा है। शौहर का दिल जीत लोगी अगर शौहर की बूढ़ी माँ की खिदमत करोगी। 76 साल की बेचारी सास है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कल वो दुनिया से जाएंगी तो शौहर सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरी बीवी ने मेरी माँ की खिदमत की थी। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, उसके अपनी बीवी से बहुत इख्तलाफात होते थे, लेकिन उसकी बीवी ने उसकी बूढ़ी माँ की खिदमत बहुत की। मुझे खुद आके बता रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा 7 खून माफ कर दिए मैंने तेरे, सही है ना, जो कुछ तूने जिंदगी में किया मैंने माफ किया, क्योंकि तूने मेरी माँ की खिदमत की है। तो गैरतमंद मियां अपनी खिदमत से इतना खुश नहीं होता जितना अपनी माँ की खिदमत से। मसला तो यही है कि मना कर सकती हो, अब 76 साल में संभालना आसान नहीं है। मसला तो यही है कि मना कर सकती हो कि भाई मुश्किल हो जाएगा सफर में, और अब हर औरत चाहती है अपने शौहर के साथ उसकी प्राइवेसी भी हो, वो सफर करना चाहती है, उसमें सास जैसा अजीम रिश्ता आ जाए तो आप खुद समझदार हैं। ठीक है ना, लेकिन दिल जीतना है। मियां अगर इस काबिल हो, मियां ही अगर गैरत लेस है, तो फिर तो उसकी माँ की जितनी खिदमत करो मियां पे कोई असर नहीं पड़ता। गैरत आदमियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं गैरतमंदों की बात कर रहा हूं। गैरतमंद आदमी की माँ की खिदमत अगर उसकी बीवी कर लेना, वो कहता है बस सब कुछ माफ है, तूने मेरा दिल जीत लिया, मेरी माँ को तूने इज्जत दे दी, तो उस पर खुश हो जाता है। तो इसलिए कर ले खिदमत, बूढ़ी सास की खिदमत कर लें शौहर। अब मुझे नहीं पता इनका शौहर इंसान का बच्चा है या नहीं है, इंसान का बच्चा होगा तभी तो अपने मियाँ को अपने खर्चे पे उम्रे पे लेके जा रही है। अच्छा मेरे बॉय, ये भी हो गया मेरे बॉय। चलो अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल भाई का, भाई सो, हाँ जल्दी जल्दी स्पीड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे माइक मुंह पे करीब करीब कर लो, ऑन तो करो, ये भी गलती हो रही है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब एक गलती हुई थी लेकिन वो मैंने दुरुस्त कर दी थी। हाँ, चरपाई पे मुसल्ला बिछा के मैं नमाज पढ़ रहा था, 2 रकात पढ़ ली थी, लेकिन बंदे आ गए, उन लोगों ने मुझे कहा कि सलाम फेरो, आप मस्जिद में जाके पढ़ो।
चरपाई पे नमाज नहीं हो सकती। नफिल नमाज पढ़ रहे थे, नहीं ईशा की पढ़ रहा था। फर्ज फर्ज बैठ के चारपाई पे, नहीं खड़े होके, क्योंकि वो थोड़ा दरवाजा बंद, थोड़ा समस्या नमाज तो हो गई है लेकिन जमीन पे खड़े होकर नमाज पढ़ा करें, चारपाई पे सलाम झूल। फेर ली थी, मैं गया मस्जिद में, उधर ही कर ली फिर उसी वक्त जाके। बस ठीक है, जब हो वो आ गई गए हो गई हो गई, लेकिन चारपाई पे खड़े होकर ना पढ़े, तमीज से जमीन पे तो- या मस्जिद न हो गई, नमाज हो गई। अच्छा नमाज हो सकती है कहने का मसला है। अगर कोई मसला बुरी हो, बात कोई है ना, वजह हो, जब कोई चारपाई पे झूलते रहोगे, नमाज के खुशू खुजू के भी मुनाफी है, तो मकरू है, बुरी बात है। अच्छा मतलब कि मकरू है। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि औलाद की तनख्वाह पर वालिदैन का कितना हक है, चाहे वो औलाद मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों सूरत में प्लीज। औलाद की तनख्वाह पर वालिदैन का कितना हक है? अगर वालिदैन मोहताज हैं, जैसे अब्बा की जॉब ही नहीं है, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो फिर तो अब्बा के तमाम तर खर्चे औलाद पर है, अम्मा के भी और अब्बा के भी। लेकिन अगर अब्बा कमा रहे हैं या अब्बा की पेंशन आती है जिसमें उनका अपना अच्छा गुजारा हो रहा है, तो फिर औलाद पर, बाप पर खर्च करना कानूनी लिहाज से, शरई लिहाज से वाजिब नहीं है, अलबत्ता तरगीब है। अंता व मालू का लि अबी का, औलाद को चाहिए ये समझे कि मैं और मेरा माल सब किसका है? मेरे बाप का है। लेकिन ये अखलाकी हुक्म है इस्लाम का। इस्लाम का कानून यही है कि बाप अगर कमा रहा है और अपने खर्चे उसके अपनी जॉब से, अपनी आमदन से, अपने बिजनेस से, अपने पेंशन से पूरे हो रहे हैं, तो औलाद का माल वो उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कानून यही है। तो फिर औलाद को राइट है कि वो रोक सकती है कि भाई जब आप करवाने तो मैं, क्योंकि जो भी कमाता है तो शरई तौर पर वो खुद उसका मालिक होता है। तो जरूरत के वक्त तो वालिदैन पे खर्च करना वाजिब होगा, जरूरत नहीं तो खर्च करना वाजिब नहीं है। मुफ्ती साहब बाज माँ बाप ये करते हैं, जबरदस्ती बच्चों की सारी आमदन लेके रख लेते हैं, बेटा फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाता, ये गलत है। इसके सोसाइटी को नुकसान होते हैं, उसको भी जीने दो, सही है ना, उसको भी अपनी जिंदगी गुजारने दो। जी मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अक्सर आपके बात बयान काट में रहा हूँ, सॉरी बात काट रहा हूँ। मुझे याद है हमारी जब तनख्वाह शुरू हुई तो हमने इरादा किया था, मेरे बड़े भाई ने भी, कि सारी तनख्वाह अपने वालिद साहब के ला के देंगे, बस आप ही हमें खिलाओ। औलाद का ये जज्बा होना चाहिए। मेरे बड़े भाई की जब जॉब लगी तो पूरी तनख्वाह उन्होंने लाके वालिद साहब को पकड़ा दी कि बस ये, जैसे हम पहले खा रहे थे तो आप ही खिलाएं, सारे पैसे आपके। लेकिन हमारे वालिद साहब ने पूरी तनख्वाह वापस कर दी कि नहीं भाई अब तुम कमा रहे हो, अपना खर्चा खुद उठाओ, मैं क्यों रखूं। ठीक है, तो ये जज्बा होना चाहिए। बाप कहे कि नहीं बेटा खुद रखो, बेटा कहे कि नहीं अब्बा आप रखो, फिर घर का माहौल अच्छा बनता है। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, बाप कह रहा है इधर दे सारा, मुझे दे, मैंने खिलाया, मैंने सारा लेकर आया, और बेटा कह रहा होता है एक ढेला भी नहीं दूंगा। तो बाप बेटे का रिश्ता कहां गया फिर? ये तो जमशेद साहब हो गए और ये वसीम हो गया, सही है ना, डैडी पापा थोड़ी हुए फिर ये। चलें, मुफ्ती साहब आपका एक बयान अक्सर सुना है कि अगर कोई बेवा औरत हो या तलाक वाली हो, उससे शादी करना सवाब भी है। फिर अगली कवारी, तो एक लड़की है उस पर बहुत जुल्म हुआ है 3 साल तक, फिर वो तलाक हो गई है, लेकिन अभी घर वाले ये बात नहीं मान रहे कि नहीं तलाक वाली आप ना करो। आपका इस बारे में क्या यार मशवरा एक दफा तुम्हें 20 साल से समझा रहा हूं, घर वालों की ऐसी की तैसी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये जुमला याद क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी बहन बेटी को अल्लाह ने करे कल तलाक हो और उसका कोई रिश्ता आए और लड़के के अब्बा मना कर दें, अम्मा मना कर दें, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा कि यार हमारी बहन के लिए एक उम्मीद हुई थी और उसकी अम्मा ने मना कर दिया लड़के की। तो अल्लाह ताला ने जब आप आकिल बालिग हो गए तो आप खुद भी तो कुछ फैसले करो ना। मैं अगर अम्मी से पूछ के चलता तो मैं तो नहीं कर पाता, आज मेरे 19 बच्चे थोड़ी होते। मेरी अम्मी तो नहीं खाई थी इसकी कि दूसरी शादी करो। हम अम्मी के पांव पकड़ते थे, अम्मी ऐसे यूं करके ठक मारती थी कि चल दबाओ, कोई रिश्ता लेने। तभी मेरी शादी लेट हुई है दूसरी, यानी 29-30 साल की उम्र में जाके हुई है, हालांकि शौक बहुत पुराना था। खैर, लेकिन हमने कहा अम्मी की भी एहतराम करना है, माँ का भी एहतराम करना है, बदकलामी नहीं करनी, लेकिन ट्राई करते रहो। 15 दिन बाद मुझे अम्मी को पता चला हमारी वालदा को कर लिया इसने। तो शुरू में रोई धोई, हाय हुई, मैयत का समाता हमारे घर में, हाय ये क्या हो गया। फिर अम्मा ने बोला हो गया तो हो गया, चल ऐसी की, हमारी अम्मा ने भी बोला ऐसी की, ऐसी हो गई है तो हो गई है, अब क्या कर। मेरी वालदा ने मुझे बोला कि मैंने इतनी तहज्जुद में दुआएं की थी कि तू शादी ना करे दूसरी, इतनी दुआएं किसी काम के लिए नहीं मैंने मांगी। कह रही इतनी दुआएं की कि फिर भी अगर हो गई है ना, इसका मतलब कुदरत की मंशा यही थी, बस अल्लाह ये चाहता था। कह नहीं वरना अच्छा, हम, मेरी वालदा आमिलों के पास नहीं जाती थी, हमारे खानदान में हमें अल्लाह ने जुन चढ़ैल भूत से अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। लेकिन मेरी दूसरी शादी रुकवाने के लिए लोगों ने, औरतों ने, अड़ोसों ने, पड़ोसों ने मशवरा दिया, फलां के पास चली जाओ, वो ऐसा तावीज देगा कि ये शादी नहीं कर पाएगा। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी वालदा मेरी शादी रुकवाने के लिए एक आमिल के पास चली गई। हालांकि ये गुनाह कभी मेरी वालदा ने नहीं किया, लेकिन किसने बताया? बुजुर्ग हैं, ये 2 नंबर आमिल नहीं है। अब वालदा को ये ख्याल हुआ कि चलो यार एक ट्राई करके देख लो, ये तो पागल हुआ है, इसका दिमाग ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। और वो आमिल कितना बेगैरत, उस आमिल ने मुझे फोन किया और मेरी जो होने वाली वाइफ थी ना, उनके बारे में मेरे दिल में गलतफहमियां डालना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे ये शो नहीं किया कि मैं वो आमिल हूं जिसके पास आपकी वालदा आई हैं, मुझे अननोन पर्सन बन के, यानी इन बेगैरतों ने रिश्ते तोड़वाने के लिए बंदे रखे हुए होते हैं, ये जाके गलतफहमियां फैलाओ।
गलत फहमियां फैला के रिश्ता तोड़वा रहा था और बाद में वालदा को बोलता देखा मैंने ऐसे तावीज किया रिश्ता टूट गया। मैं समझ गया, मैंने उसको गालियां दी, चल साला कहीं का। तो क्योंकि मैं मुतासिर नहीं होता इन आमिलों से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदाजा हो गया कि ये वालदा जो गई है ना, ये किसी आमिल ने बंदे किराए पर रखे हुए हैं, अब वो जाके क्या कर रहा है, गलत फहमियां फैला रहा है। तो सारे जोर लगा दिए वालदा ने, लेकिन इतना ढीठ आदमी इस कायनात में आपने देखा नहीं होगा, रुका ही नहीं। तो फिर वालदा ने कंप्रोमाइज किया, उन्होंने बोला मैंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी तदबीर, फिर भी हो गई है तो बस ठीक है, कुदरत की मंशा यही थी, अब तलाक नहीं देना। मेरी वालदा में खानदानी बात ये थी, उन्होंने कहा काम गलत हुआ है लेकिन किसी को तलाक नहीं दिलवाऊंगी मैं। हमारे यहाँ होता यह है कि जब बच्चा शादी कर लेता है तो जबरदस्ती तलाक दिलवाते हैं दूसरी को। भाई उसका भी तो घर है, उसका भी तो बाप है, उसकी भी तो माँ है, उसका घर क्यों उजाड़ रहे हो? ना दूसरी की वजह से पहली को तलाक दो, ना पहली की वजह से दूसरी को तलाक दो। तो ये गलत तरीका है कि तलाकें दिलवाना। हमारे एक रिलेटिव है, वो बड़े समझदार है, वो भी मेरी दूसरी शादी पे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेटा खुश तो नहीं हूं तुम्हारी शादी पे, अच्छा काम नहीं किया तुमने, लेकिन अब तलाक नहीं दो, मैं तो वैसे भी नहीं दे रहा था। फिर उनका ये जुमला मुझे याद है, कुछ गलतियां उन्होंने कहा रिवर्सेबल नहीं होती, अब हो गया है लेकिन अब हम तलाक का नहीं कहेंगे, वो भी किसी की बेटी है। मैंने कहा खानदानी, समझ रहे हो ना, खानदानी लोग, खानदानी आदमी है कि इनको अच्छा नहीं लगा मेरा शादी करना, लेकिन उन्होंने कहा अब कर लिए तो तलाक नहीं, वो भी किसी की। तो आजकल देखो किस अपनी बच्चियों का बस होश है, दूसरों का है ही नहीं, दूसरों का बेड़ा गर्क हो। तो इसलिए आपका जो सवाल था वो ये था कि तलाक याफ्ता लड़की है, माँ बाप राजी नहीं हो रहे, खानदान राजी नहीं हो रहा, खानदान की जब आप शादियां करोगे, बच्चे पैदा करोगे तो आप ही का खानदान होगा। ये वाला जो खानदान जो आपको रोक रहा है, थोड़े दिनों में आपके खानदान का एक छोटा सा पार्ट होगा। देखो जिसकी 4 बीवियां हैं, 18-20 बच्चे या 10-15 तो हो ही जाते हैं ना चारों से, तो आपका जब खानदान आपसे मिलने के लिए आएगा तो कितना सा होगा वो है? खानदान तो आपका है। इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना कितने बच्चे, मैंने कहा 19। कह रहे हैं आप कौम पे रहम करें, तो मेरे ज़हन में एक जवाब आया था, मैंने उसको दिया नहीं। कौम तो है ही यही भाई, तुम लोग कौम हो, एक बीवी एक आध बच्चा, ये कौम है, कौम तो है ही यही, तुम लोग कौम थोड़ी हो पागल के बच्चों, एक एक दो दो बच्चे साशे लेके घूम रहे हो तुम लोग, और 50-50 साल में पहली शादी हो रही है, तुम कौम हो, तुम कौम पैदा कर रहे हो, तुम तो कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हो, नस्ल कुशी कर रहे हो। हमारे पास आओ तुम्हें पता चलेगा कौम किसे कहते हैं। ये कौम, अल्लाह बरकत दे, नजर बस से बचाए अल्लाह ताला। मुझे डर लगता है तुम लोग की कमबख्तों की नजर ना, तुम लोग सॉरी कमबख्तों तो मैं नहीं कहना चाहिए, नजर ना लगा दो तुम लोग। अबे घर बच्चे हो, घर वाले हो, ससुराल हो, सालेज हो, सालियाज हो, बच्चों के चाचे मामे फुप्पे ताए, और बेटे भी हो, बेटियां भी हो, दामाद भी हो, पोते भी हो, नवासे भी हो, इज कॉल्ड कौम, इज कॉल्ड खानदान। अपने नाना का एक मलफूज सुना के, मेरे नाना 99 साल में फौत हुए थे, उनकी भी औलाद माशाल्लाह बहुत थी, बेटे बेटियां दामाद बहुएं। हमारे नाना मस्जिद के इमाम भी थे। तो एक दिन हमारे नाना से चंदे वंदे नहीं लेते थे, लोग फौरन कमेंट कर रहे हैं असल में चंदे की पलाई पे, 1 रुपया मेरे नाना ने कभी चंदा नहीं लिया, बहुत थोड़ी आमदन में गुजारा किया, और फौज से, आर्मी में भी थे ना, तो फौज से रिटायरमेंट के भी पैसे आते थे, बच्चों को पढ़ाया भी, उसी में लिखाया भी, और हमें पता है इस्तिगना खिलाना जानते थे, खाते नहीं थे। उनका तो सखावत मशहूर थी, सरगोदा में आज भी जाएं लोग उनकी सखावत की तारीफ करेंगे। तो उनसे जब लोग पूछते थे, कहते थे मौलवी साहब घर में खैरियत है? वो कहते थे खैरियत कम बख्तों के यहाँ होती है, जिन कम बख्तों की औलाद ही नहीं होती, कोई घर में है ही नहीं तो खैरियत ही खैरियत है। कह रहे हमारे तो बेटे बेटियां, कभी किसी का सर फटा हुआ है, कभी किसी के घुटने में चोट आई हुई है, कभी कोई घंटी बजा के भागा पकड़ा गया, महल्ले वाला से पिट रहा है, उसको बचाने जा रहे हैं। कह रहे हमारा तो खानदान है, खैरियत तुम जैसे कम बख्तों के यहाँ होती है। जहां कोई खानदान होता ही, दीवारें देखते रहो, 1000 गज के बंगलों की डिफेंस में जाओ ना, 1000 गज का बंगला है, दीवारें देख रहे हैं, यहां से शुरू होकर वहां पहुंचने में आधा घंटा लगता है, उस वॉशरूम में बीच में कोई बंदा ही नहीं है। हम तो आए, अल्लाह का शुक्र, अभी तुर्की से मैं आया हूं, पता चला बच्ची को वो झूला झूलते हुए सर पे चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी हो गई, ठीक हो गई। दूसरे का पता चला कि जी वो उसके पता नहीं कोई नजला हो गया, खांसी हो गई है, क्या हो गया है, सब चलता है भाई। तो बच्चों की खुशियां उनकी टेंशनों से ज्यादा हैं, समझ आ रही है बात? जो खुशियां है ना बच्चों की, वो टेंशनों से ज्यादा है। इसलिए आइंदा मुझसे ये कोई किसी ने पूछा ना कौम पे रहम करो, तो मुझसे अच्छे जवाब की उम्मीद न रखें।